آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک بھر کے اسپتالوں اور فارمیسیز کو بھی بینائی متاثر کرنے والے انجیکشن کے استعمال سے روک دیا ہے۔ ڈرگ حکام کا کہنا ہے کہ کسی اسپتال، لیبارٹری یا فارمیسی کے پاس انجیکشن کی ری پیکیجنگ کا لائسنس نہیں۔ مارکیٹ میں غیر رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ دونوں کے طرح کے انجیکشن موجود ہیں۔ درآمد شدہ انجیکشن کی کوالٹی چیک مکمل ہونے تک استعمال نہ کیا جائے گا۔ مریض بھی آنکھوں کی بیماری کے لیے فی الحال یہ انجیکشن لگوانے سے گریز کریں۔ لاہور میں ڈریپ کا میڈیسن ڈسٹریبیوٹرز کے دفاتر پر چھاپا، انجیکشن کی 110 وائلز برآمد، جبکہ سیمپل ڈرگ ٹیسٹنگ لیب بھجوا دیے گئے۔ ملتان، بابرپور اور جھنگ میں انجیکشن لگنے سے بینائی متاثر ہونے والے 10 مریض سامنے آ گئے۔ پنجاب میں جعلی انجیکشن لگنے سے بینائی متاثر ہونے کے اب تک 77 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ یہ تو طے شدہ تھا کہ وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حق تلفی ہو۔ قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بتایا گیا تھا کہ اب جیل میں اے، بی اور سی کلاس ختم ہو گئی ہے، جس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اب جیل میں عام اور بہتر کلاس ہوتی ہے، وہ بہتر کلاس کے حقدار ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی کوئی حق تلفی ہو۔ جیل رولز کے مطابق وہ جن چیزوں کے حقدار ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا۔ خبر شامل کریں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 2 اکتوبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ہوئی۔ سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت پیش ہوئے۔ وکیل شیر افضل نے استدعا کی ہے کہ مبینہ غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت آج بغیر کارروائی ملتوی کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے عدالت پیش کرنے کے دوبارہ احکامات جاری نہیں کیا گیا۔ ان کا معاملہ اب اٹک جیل کا نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ جج نے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے؟ وکیل شیر افضل نے جواب دیا، چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت ریاست کی کسٹڈی میں ہے۔ تو دوسری جانب اینٹی کرپشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور فرید مانیکا کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا کو سرکاری رقبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ خاور مانیکا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کر رہے ہیں۔ ان پر قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کرنے کا الزام ہے۔ انہوں نے قبرستان کی زمین پر غیر قانونی طور پر 26 دکانیں تعمیر کی۔ اینٹی کرپشن کے ترجمان کے مطابق خاور فرید مانیکا ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اینٹی کرپشن نے ان کے ملک سے فرار ہونے کی کوشش ناکام بنا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے امیگریشن نے خاور مانیکا کو دبئی جاتے ہوئے روکا۔ وہ غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے دبئی جا رہے تھے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ خاور مانیکا کا نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے انہیں روکا گیا۔ خاور مانیکا دبئی جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ ان کو اینٹی کرپشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ثانیہ بلدیہ کیس میں نامزد ملزم حماد صدیقی کا پاسپورٹ شناختی کارڈ بلاک کرنے اور بینک اکاؤنٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ثانیہ بلدیہ فیکٹری سمیت 3 کیسز کی مفرور ملزمان کی وطن واپسی کے معاملے کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں وفاقی سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے مفرور ملزمان کی وطن واپسی کی کوشش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ دوران سماعت عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ سے سوال کیا کہ حماد صدیقی کو وطن واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ اس پر سیکرٹری داخلہ نے بتایا، حماد صدیقی 2017 میں ابوظہبی چھوڑ چکا ہے
उस पर जस्टिस के आगा ने कहा कि हमाद सिद्दीकी केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही अबू धाबी छोड़ चुका था। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा हमाद सिद्दीकी 2013 में पाकिस्तान से चला गया था। अदालत ने सवाल किया कि क्या हमाद सिद्दीकी का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। इस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा हमाद सिद्दीकी के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है। अदालत ने हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह, खुर्रम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट बंद करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा हमाद सिद्दीकी के आखिरी बार पाकिस्तान लैंड करने की तफसीलात पेश की जाएं। अदालत ने मफरूर मुल्जिम तकी हैदर और खुर्रम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली और साथ ही प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सूबे भर के मफरूर और इश्तहारी मुल्जिमान की फहरिस्त भी मांग ली। अदालत ने अदम पेशी पर सेक्रेटरी उमूर खारिजा को शोकास जारी कर दिया और आइंदा समात पर नादरा और सेक्रेटरी उमूर खारिजा से 2 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजारत मजहबी उमूर ने पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तसर दौरानिए का हज पैकेज मुतारुफ कराने का ऐलान कर दिया। निगरां वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने बयान में कहा कि 2024 में 18 से 20 रोज का हज पैकेज भी दिया जाएगा। मुख्तसर हज या 40 रोज के हज से मुतालिक फैसला हुज्जाज कराम खुद करेंगे। वजीर मजहबी उमूर का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश होगी मुख्तसर दौरानिए हज के अखराजात जनरल हज के बराबर हों। आम तौर पर हज का पैकेज 35 से 50 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें रिहायशी, होटल, खाने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात मिलाकर मजमूई तौर पर गैर मामूली खर्च हो जाता है। गुज़िश्ता बरसों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से आज़मीन की बड़ी तादाद के लिए हज के अखराजात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। यही वजह है कि रवा साल 2023 में पाकिस्तानी शहरियों ने सरकारी कुरानदाजी में कोटे से भी कम तादाद में दरख्वास्तें जमा करवाई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की शिरकत के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। खबर रज़ा एजेंसी एसोसिएट प्रेस को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पीटीआई सरबराह के बगैर शफाफ इंतखाबात कराए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और हालिया सालों में उसकी कारकर्दगी बेहतर हुई है। फौज को कमजोर करने से मुल्क का कोई मसला हल नहीं हो सकता। इंतखाबात का इनेकाद फौज का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह की तैनाती चेयरमैन पीटीआई ने खुद की थी। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि अदलिया को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जाती रंजिश की वजह से किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे। सरबराह पीटीआई हो या कोई और जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि कश्मीर यूरोप में होता तो क्या तब भी उसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता जैसा कि अब किया जा रहा है। कश्मीर के मसले का अहम तरीन किरदार वहां के शहरी हैं। तो दूसरी तरफ तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि निगरां वजीर आजम का बयान रियासती ढांचे की अदम हसासियत का मजहर है। निगरां वजीर आजम को मालूम होना चाहिए ऐसा इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा। तर्जुमान के मुताबिक पीटीआई की शमूलियत के बगैर इलेक्शन को अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। सियासी क़यादत और जमातों को बाहर करने के नताइज तबाकुन हुआ करते हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने अनवारुल हक काकड़ से अपने बयान की फौरी वजाहत करने का मुतालबा भी कर दिया। बात करें लापता सहाफी इमरान रियाज 4 माह के बाद बाजियाब हो गए और घर भी पहुंच गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तस्दीक की है कि 4 माह से जायद अरसे से लापता सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज बाहिफाजत बाजियाब हो चुके हैं, जबकि अपने घर भी पहुंच चुके हैं। सियालकोट के डीपीओ हसन इकबाल और इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक ने इस पेशरफ्त की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सियालकोट पुलिस ने कहा, सहाफी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। अब वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं और अहले खाना के साथ भी हैं। मियां अली अशफाक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि अल्लाह के खास करम और फजल से रहमत बरसाई है कि वो अपने शहजादे को मैं फिर घर ले आया हूं। उन्होंने लिखा है कि मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमजोर अदलिया और मौजूदा गैर मौसर सरेआम आइन और कानून बेबसी की वजह से बहुत ज्यादा वक्त लगा। उन्होंने मजीद लिखा कि नाकाबिले बयान हालात के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बेहतरीन दिन दिखाया। उस वक्त सिर्फ बेपनाह शुक्र। सहाफी वजाहत एस खान ने कहा कि उन्होंने इमरान रियाज के अहले खाना से बात की है। वो फिलहाल कमजोर हैं, उनकी सेहत बेहतर नहीं है, लेकिन वो वापस आ गए हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान की घर वापसी हो गई है और पूरी कौम में खुशी की लहर भी दौड़ी है। ये लाखों दुआओं का नतीजा है। पीटीआई ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि जहन से निकाल दें, सुप्रीम कोर्ट से तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अपने जहन से ये तसव्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, सबके लिए पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद काफी ज्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि दीगर अदालतों में यह होता है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागजात पूरे होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बाद अज़ा अदालत ने मुकदमे की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और इलेक्शन कमीशन की बात करते हुए बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्टों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकेगा। आइंदा आम इंतखाबात उन्हीं वोटर लिस्टों पर होंगे। पंजाब भर में रजिस्टर्ड वोटों का डाटा उर्दू न्यूज नेटवर्क ने हासिल कर लिया है, जिसके मुताबिक सूबों में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 7,27,10,582 है। 2018 के मुकाबले में पंजाब में वोटर्स की तादाद 1,16,37,811 है, जबकि दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में रजिस्टर्ड मर्द वोटों की तादाद 3,87,20,67 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,59,90,515 है। 2018 के मुकाबले में पंजाब में रजिस्टर्ड खवातीन वोटर्स की तादाद 85,98,141 का इजाफा और मर्द वोटर की तादाद में 50,39,670 वोटर्स का इजाफा हुआ है। पंजाब के 41 अजला में सबसे ज्यादा वोटर्स की तादाद जिला लाहौर में 67,24,633 है। लाहौर की कुल आबादी 1,20,08,000 है, जबकि लाहौर में मर्द वोटर्स की तादाद 35,88,725 है। लाहौर में खवातीन वोटर्स की तादाद 31,45,908 है। सूबे में सबसे कम वोटर्स की तादाद डिस्ट्रिक्ट मरी में है, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,90,931 है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान ने 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस में धरना देने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज तैमूर रहमान ने निगरां वजीर आजम से शफाफ इलेक्शन की खातिर एक्सटेंशन और कब्जा माफिया को खत्म करवाने की दरख्वास्त भी की है। उन्होंने कहा, सीएम को भी चाहिए कि वो माफियाज का साथ ना दें। उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल क्या किया? ये चाहते हैं कि बगैर अपोजिशन के हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी सिर्फ काम में नाअहल है, करप्शन में नहीं। हाफिज तैम का कहना है कि हर हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ मिलकर कराची के अवाम को लूटा है। जो बिजली बम हमने इस्तेमाल नहीं की, उसके बिल हम भर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाकी किसी को कोई मसला ही नहीं, सब मिलकर कराची को खा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के बिलों में होने वाले इजाफे के खिलाफ हमने गवर्नर हाउस के बाहर बैठने का ऐलान किया है, उठने का ऐलान नहीं किया। हाफिज तैमूर रहमान ने यह भी कहा कि आईएमएफ का काम भी यही है कि पहले बुहरान पैदा करो फिर कर्ज दो। आईएमएफ ने तो और भी बहुत सारी बातें कही हैं। जिनकी शुगर मिल्स हैं वही जागीरदार हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जागीरदारों ने अपनी सनतें भी लगाई हुई हैं। नाज़िमाबाद में घर के चौकीदार ने मां और बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में घर के अंदर कुएं से मां बेटे की लाशें मिली हैं, जिन्हें गला दबाकर कत्ल किया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की गई तो कत्ल की वारदात में घर का चौकीदार मुलविस निकला, जिसने दोनों को गला दबाकर कत्ल किया और लाशें कुएं में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और तफ्तीश के दौरान उसने लाशों को निशानदेही की है, जिसके बाद लाशों की कुएं से निकाल लिया गया है। बात करते हैं फलस्तीन की, तो फलस्तीन में इस्राएली फौज की जारहियत जारी है, जहां मकबूजा मगरिबी किनारे में इस्राएली फौज ने पनाह गजीन कैंप पर नया हमला कर दिया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरिबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में मंगल से अब तक 8 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माबरा हुसैन ने खाला बनने की खुशखबरी मदाहों को सुनाते हुए नौमौलूद भांजी के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। माबरा हुसैन ने अपने मदाहों को एक खास खबर देने के लिए सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का रुख किया, जहां उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की है जिनमें उन्होंने नवाजादा बच्ची को गोद में उठाया हुआ है। उन तस्वीर में माबरा हुसैन अपनी भांजी को गोद में उठाए बेहद खुश नजर आ रही हैं और इस खुशी का इजहार उन्होंने अपनी पोस्ट में भी किया है। माबरा हुसैन ने पोस्ट में लिखा है कि ये छोटी सी प्यारी सी हमारी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आई है। नन्ही मेहरबानो, हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अदाकारा ने अपनी पोस्ट के हैशटैग में खाला लिखा और साथ ही अपनी दोस्त को भी टैग किया है जिसकी बेटी की मावरा खाला बनी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रूठे खिलाड़ियों को मनाने की कोशिशें तेज हो गईं, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तनाज़ा हल करने का टास्क इंज़िमामुल हक को सौंप दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा तनाज़ा अब हल होता दिखाई दे रहा है। शोबा इंटरनेशनल क्रिकेट की नाकामी के बाद चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मामला अपने हाथ में ले लिया। वो चाहते हैं कि खिलाड़ी जब वर्ल्ड कप में शिरकत करें तो उनकी तवज्जो मुआहदों पर नहीं, अपने खेल पर हो। ज़का अशरफ की इस हवाले से जब चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक से बात हुई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ये मामला 2 दिन में हल हो सकता है। तमाम खिलाड़ी मुहिब्बुल वतन और चाहते हैं कि कोई तनाज़ा ना हो, अलबत्ता उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो दें और मुतालबात सुने, फिर जो दोनों के लिए जो काबिल कबूल हल हो उस पर अमल किया जाए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने प्लेयर्स से बातचीत का इख्तियार इंज़िमामुल हक को सौंप दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए और दुनिया।